Hare
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ
So we'd like to welcome everybody for today's program, and especially welcome His Holiness Bhaktivedanta Holy Krishna Goswami Maharaj ki Jai. So Maharaj is his first visit to Mauritius. Maharaj is a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Very enthusiastic preaching, especially in ISKCON Punjabi Bagh, where it started very small, and then today we have nearly 2,000 congregation devotees. Maharaj has been involved in ISKCON youth preaching also, and Maharaj took sannyas on 14th April 2026, this year itself. It's a very great fortune and privilege for us to welcome Maharaj with big free Haribol. Thank you, Maharaj, for accepting. So, Maharaj est aussi des Vilaines, puis précisément Punjabi Bagh, et il est disciple de His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Et Maharaj est enseignant le 14 avril 2026, cette année-ci. Et Maharaj est bien involved dans faire un preaching pour les jeunes dans IYF, ISKCON Youth Forum. Et Maharaj, son première visite ici à Maurice,
Et du coup là, elle se jusqu'au 30 août. Et we will welcome Maharaj for 3 big Haribol. Hare Krishna. Om Jnana-Timirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya-Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vidansha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Muktika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanam Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarutyasya Kripa Sindhu Vacha Aditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishwatarine. Hare Krishna. मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबके बीच में उपस्थित होकर। आप सब हिंदी समझ आते हैं? हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्री प्रभुपाद जी के सुंदर आंदोलन में हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर तरीका बताया है कि हम सब इस जीवन में खुश रह सकें और ये शरीर छोड़ने के बाद भी सीधा भगवत धाम जाए, भगवान के धाम में जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम अगले जन्म में भगवान के धाम में जाएं, भगवान के साथ खेल सकें, नाच सकें, कूद सकें, खा सकें, पी सकें, भगवान के साथ रोज पिकनिक मना सकें। अरे आप लेकिन लोग ऐसा जीवन चाहेंगे कि आप रोज कृष्ण के साथ पिकनिक मना रहे हैं। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कितने लोग खुश हो जाएंगे। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है, कितने लोग ऐसा जीवन चाहेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा उसने कृष्ण बने, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। क्या ये तो आप कोई हमें सपना दिखा रहे हैं। नहीं, वो सपना नहीं है, वो वास्तविकता है। वो हमारा असली घर है और यहाँ हम अपना बहुत यहाँ आपको स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सपना ये बहुत ही जगह हम जब रात को देख सोते हैं तो भी सपने देखते हैं, जब हम दिन में जागे होते हैं तो भी सपना है। कैसे? जो रात को हम जग के सोते हैं बहुत उल्टी सी चीज देखते हैं, शुरुआत में मरने नहीं, वो सब बेकार था ही, चला गया। इसी प्रकार से जब हम देखने भी कार्यक्रम कर रहे होते हैं वो सब टेम्परेरी है। क्या आपने जो 10 साल पहले कार्य किया था वो आपके साथ है? नहीं। 10 साल पहले छोड़ 2 दिन पहले जो किया तो है नहीं, टेम्परेरी है, सब भूल जाता है। ठीक है, तो हम जीवात्मा है, सनातन है, एटर्नल है, परमानेंट है। तो हमारा खुशी भी, हमारा आनंद भी परमानेंट होना चाहिए।
इस संसार में हर चीज काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से उसमें क्षय होता रहता है, डिटोरिएशन होता रहता है, वो समाप्त हो जाती है। ये हमारा जीवन नहीं है। तो हमें ये सिखाने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि हमारा वास्तविक संबंध क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण बार कहते हैं। इसलिए जन्माष्टमी महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्माष्टमी महोत्सव आने वाला है, भगवान हमें अपने प्रति आकर्षित करने के लिए आते हैं। हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान हमें नहीं भूले। तो जन्माष्टमी का मतलब है भगवान फिर से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। फेसबुक पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है ना, भगवान बोलते आ जाओ भाई, इस बार तो आ जाओ। और हम भगवान को टालते जा रहे हैं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर से आएंगे। तो हम टालते जा रहे हैं, लेकिन भगवान इतना सब्र रखते हैं, इतने सहनशील हैं, फिर हमें बार बार याद आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि भगवान हमारे असली पिता हैं। बच्चा बेवकूफी में, अज्ञानता में अपने पिता को भूल सकता है, लेकिन पिता अपने बच्चों को भी नहीं भूलते। इसलिए जन्माष्टमी उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारा भगवान से बहुत प्रेममय संबंध है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, उनकी केवल दो इच्छाएं पूरी हो जाए तो आनंद में हो जाएंगे। चाहे वो इंडिया में रहते हैं, मॉरिशस में रहते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वर्ग में, नरक में, कहीं भी रहते हैं, किसी भी योनि में है, उन जो जीवों की केवल दो इच्छाएं पूरी हो जाए वो खुश हो जाएंगे। आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी दो इच्छाएं? क्वेश्चन समझ में आ गया? गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सुंदर है, कुरूप है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बूढ़ा है, सबकी दो इच्छाएं बस वो पूरी हो जाए, हम पूरे आनंद में आ जाएंगे। कितने लोगों की इच्छा होगी, आप मॉरिशस से पूरा कर लीजिए, इच्छा है भगवान की सेवा करने, बोले हम तो भगवान से सेवा लेना चाहते हैं, भगवान के मंदिर या तो कोई लिस्ट लिखवाइए, करवा दो फटाफट, आप नहीं करवाए तो भगवान बदल लूंगा, किसी और मंदिर में चला जाऊंगा। बताइए कौन सी दो इच्छा है? To be always happy. For to be always happy, we need to fulfill all two desires. Only then we'll be always happy. हाँ? अमर? नहीं, आप आईसीयू में जाइए किसी हॉस्पिटल में, कम जाओ इससे अच्छा है। कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अमर नहीं खाना। खाना पीना, अरे कई लोग बोलते हैं बहुत खा लिया भैया, फास्टिंग करूंगा। जिसका ओवर वेट होता है खाना नहीं। स्टे यंग, हमेशा जवान रहना चाहते हैं, सारे जीव हमेशा जवान रहना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बुढ़ापे में कुछ फायदे होते हैं, इसके भी कुछ फायदे हैं। ये मतलब जैसे टू लव एंड टू बी लव्ड। हम हर कोई संसार में ढूंढ रहे ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम कर सके और जो हमसे प्रेम करे। असीमित प्रेम, हम सबकी डिमांड है असीमित प्रेम की, हमारी भूख है प्रेम की। और इस संसार का कोई भी जीव, कोई भी वस्तु हमारे इस प्रेम की भूख को नहीं संतुष्ट कर सकता। इसलिए संसार में पता है जो प्रेमी होते भी हैं, बुरा मत मानिए, वो मुझसे संतुष्ट नहीं होते किसी से। तो इस संसार में जो प्रेम है उसमें जो स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर स्वार्थ नहीं भी है तो वो परमानेंट नहीं है, समय के साथ हम अलग हो जाते हैं। तो प्रेम पाने की इच्छा, प्रेम करने की इच्छा, संसार का कोई जीव इस हमारी दो इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। कि एक ही व्यक्ति है जो उसको पूरा कर सकते हैं, कौन है वो? कृष्ण। कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक जीव से अनलिमिटेड प्रेम कर सकते हैं और अनलिमिटेड प्रेम पाते हैं। इस संसार में बुरा मत मानिए, कोई लड़का है अपनी पत्नी, अपनी नई उसकी विवाह हुआ बहू से, तो अपनी पत्नी से प्रेम करता तो मां नाराज हो जाती है, मां से फिर तो
बेचारा बैलेंस ही बनाता रहता है, जो बच्चे भी आ जाते हैं सारा प्रेम डिवाइड हो जाता है, वो परेशान होता है क्या करूं। लेकिन भगवान ऐसे हैं सबसे प्रेम कर सकते हैं, सबको पूरा अटेंशन दे सकते हैं। इसलिए जब तक हम कृष्ण प्रेम करना नहीं सीखेंगे हम जीवन में आनंद नहीं पा पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं निताई गौर प्रेमानंद में। हमारा जो आनंद है उसका आधार क्या है? प्रेम है। तो प्रेम केवल कृष्ण से ही करना है। जीव और कृष्ण के बीच का जो संबंध है उसको प्रेम कहते हैं। कोई बोले अगर कृष्ण से प्रेम करेंगे तो अपने पति पत्नी बच्चों से घर से माँ बाप से कौन प्रेम करेगा? अगर कोई कृष्ण से प्रेम करना शुरू कर देता है तो संसार के प्रत्येक चीज से वो प्रेम करता है। हम देखते हैं भक्तों के परिवार में जब भक्त लोग भक्ति में जुड़ते हैं पति पत्नी माता पिता भाई बहन भाई भाई के संबंध और मधुर हो जाते हैं। आप से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब से आप भक्ति में आए आपके आपस के संबंध और अच्छे हो गए? है कि नहीं? तो हाथ खड़ा कीजिए, बोले हरि बोल। बड़ा हल्का सा हरि बोल है। आनंद आया है भक्ति में जब आते हैं तो आपके संबंध मधुर होते हैं कि नहीं होते? बोले हरि बोल। तो ये याद दिलाने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। जिस प्रेम को आप ढूंढ रहे हो वो प्रेम मुझसे मिलेगा। ये हम समझ नहीं पाते। प्रेम एक ऐसी वस्तु है हर कोई चाहता है, लेकिन जो वास्तविक प्रेम की सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है। जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? कोई बिजनेसमैन है प्राइस बोलो जो मर्जी प्राइस हो, मुझे असली प्रेम चाहिए दे लो, नहीं मिल रहा। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो क्या होता है मार्केट में? ब्लैक में भी मिल जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट माल आता है। तो इस संसार में डुप्लीकेट प्रेम है। उस डुप्लीकेट प्रेम को पाके बड़े खुश हो जाते हैं। बहुत पहले हिंदी फिल्म में गाना था, पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। कोई झूठा ही प्रेम कर दे, कोई झूठे मुंह बोल दे आई लव यू, हम लड्डू हो जाते हैं। बस सुनना चाहते हैं, हम इतने डेस्परेट हैं प्रेम पाने के लिए। तो क्यों ना ये प्रेम हम कृष्ण से करें? जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो देखेंगे हमारा जीवन में आनंद होगा, और हम जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसको हम आनंद देंगे। श्रीला प्रभुपाद इसके जीवंत उदाहरण है। श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में गए, आप सब जानते हैं 1965 में प्रभुपाद करीब 70 वर्ष की थी, और वहाँ हिप्पीज अमेरिका में बुरी हालत थी उनके। सभी लड़के लड़कियां जवान थे, हिप्पी बने हुए थे, घर से बाहर निकले हुए थे, नंगे घूमते थे, LSD चरस गांजा लेते थे, किसी की नहीं सुनते थे। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या थी। उन हिप्पियों के 2 गोल्डन रूल थे। पहला गोल्डन रूल तो ये था हम किसी की नहीं सुनेंगे। दूसरा गोल्डन रूल था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 30 साल से ऊपर है वो पागल है, इज क्रेजी। बताओ कौन उनको सुनाएगा? जो भी 30 साल से ऊपर बड़े पागल है। प्रभुपाद वहां पे पहुंचे, प्रभुपाद की कितनी आयु थी? 70 साल। और प्रभुपाद ने खूब सुनाया उनको, वो भी संस्कृत में सुनाया। और उन्होंने सुना, क्यों? उनको लगा ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। ऐसा प्रेम हमें अपने माँ बाप से नहीं मिला जो इस व्यक्ति से मिलता है, जो कि विदेश से आया, भारत से आया है, लेकिन इसके हमें बहुत अपनापन मिलता है और प्रेम मिलता है। इसके अंदर कृष्ण प्रेम होता है, वो सबको आकर्षित कर लेता है, वो सबको प्रेम देता है। तो इसलिए आज पूरे समाज में, मानव समाज में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम अंदर से परेशान हैं। इसका एक ही कारण है प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी। इसलिए जन्माष्टमी उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी उत्सव केवल पंडाल लगाना और खाली धूम धड़ाका करना और ये उसके लिए नहीं है। जन्माष्टमी उत्सव इसलिए है कि अपने आप को याद दिलाना कि जिस खुशी के लिए मैं भटक रहा हूँ जन्मों जन्मों तक, उस खुशी का कुंजी देने आए भगवान ये समझाने आए हैं कि मुझसे प्रेम करो। मुझसे प्रेम करोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। तो भगवान हमें सिखाने आए हैं। तो भगवान से कैसे प्रेम किया जाए ये सिखाने के लिए भगवान अपना विस्तार खुद करते हैं बलराम जी के रूप में।
बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार है, और जो बलराम जी हैं आदि दास हैं। कैसे कृष्ण की सेवा करनी है ये बलराम जी सिखाते हैं। प्रेम करने का मतलब क्या है? टू सर्व, सेवा करना। हम किसी से प्रेम करते मतलब क्या? उसकी सेवा करते हैं। इस संसार में सबसे शुद्ध प्रेम कौन सा है? माँ का बच्चे के लिए। और माँ बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है। 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखती है, कष्ट सहती है, और फिर बच्चा जब पैदा होता है रात भर तक जाग के उसका मल मूत्र साफ करती है। अगर वो पिताजी बच्चे को उठाने में मल मूत्र जागता है, छी छी छी, प्रभु जी लोग इसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, सब बड़े प्रेम से उसकी सेवा करती रहती है, सेल्फलेसली वो सेवा करती है, राइट। तो हमें बात क्यों है? क्योंकि यस, तो प्रेम का मतलब है सेवा। अगर कोई बोले आई लव यू ना, एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल आई लव यू, प्रभु जी बोलते हुए भूख लगी खाना को खिला दो, और वो स्विगी से मंगवा लो, जोमेटो से मंगवा लो, तो नहीं, आई लव यू का मतलब है आई विल सर्व यू। एक बार यमुना माता जी जो शिला प्रभुपाद जी को प्रिय शिष्य हैं, गोविंदा माता जी को उन्होंने बनाया है, तो यमुना माता जी ने बहुत सेवा की प्रभुपाद जी को। यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी को बोल दिया प्रभुपाद आई लव यू, और प्रभुपाद जी ने वापस बोल दिया आई ऑल्सो लव यू। ये बात आपकी तरह फैल गई, खासकर माता जी लोगों में। कमाल है, हम प्रभुपाद जी को बोल सकते हैं आई लव यू, तो बड़ी बात है। एक माता जी बड़े प्रेम से प्रभुपाद आई लव यू, प्रभुपाद जी को ऊपर से चले और डांटा, डू समथिंग प्रैक्टिकल, बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ सेवा करो। तो प्रेम का मतलब है सेवा। तो बलराम जी यहाँ प्रकट होते हैं सिखाने के लिए कैसे भगवान से प्रेम करना है, यानी कि कैसे भगवान की सेवा करना है। इसलिए उनको आदि दास कहा गया है। आदि मतलब ओरिजिनल, दास मतलब सर्वेंट, ओरिजिनल सर्वेंट है बलराम जी। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। सेवक भगवान यानी कि वो भगवान है लेकिन सेवक के रूप में प्रकट हुए हैं, और कृष्ण भी भगवान है लेकिन सेव्य, वो सेवा लेते हैं। बाबा जी बोला कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है, रंग में अंतर है। तो भगवान की सेवा 5 रसों में होती है। कौन कौन से रस में, किसी को पता है? शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस, साखे रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो बलराम जी की कृष्ण की सेवा करने की इतनी उत्कंठा है कि वो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। 5 रसों, यानी कि कृष्ण की सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कि शांत रस, शांत रस में कैसे बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं? वो भगवान के वस्त्र बन जाते हैं। भगवान जब गाय चराने जाते हैं तो लकोटी लेके जाते हैं, लकोटी बन जाते हैं। भगवान का सिंहासन बन जाते हैं, भगवान का बिस्तर बन जाते हैं, भगवान की चप्पल पादुकाएं बन जाते हैं। वही भगवान जब कलयुग में हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं तो बलराम जी मृदंग के रूप में प्रकट होते हैं, करताल के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भक्त लोग हमेशा मृदंग करताल का जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी उपकरण भगवान के गुणगान करने में सहायता कर रहा है वो बलराम जी का विस्तार है। इसलिए बलराम मृदंग को भी हम हाथ से लगाते हैं, ऐसे पैर नहीं लगाते, हम करताल देने से उस परिसर पे छूते हैं क्योंकि बलराम जी है। तो शांत भाव में बलराम जी इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। दास भाव में कैसे भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी? भगवान जी सेवक हैं, बलराम जी कृष्ण के सेवक हैं। यशोदा मैया जब कृष्ण जाते हैं गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए, तो दाऊ जी मतलब बड़े भाई बलराम जी को साथ में भेजती है। देखना ये जो कृष्ण है इतना खेलता है, समय पे खाना नहीं खाएगा, इसको खाना खिलाना है, इसकी रक्षा करनी है, इसकी देखभाल करनी है। तो बलराम जी देखभाल करने जाते थे, साथ में जाते थे। हालांकि कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ माखन चुराने भी जाते थे,
बलराम जी माथा नहीं चलाते थे, वो साथ में रहते थे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, गिर ना जाए ना, ये ध्यान रखते थे बलराम जी, साथ साथ रहते थे। तो दास भाव में भी जाते थे। और फिर साख्य भाव, कृष्ण बलराम जब ग्वाल वालों के साथ जाते थे खेलने कूदने, बहुत खेलते थे। एक्चुअली जैसे मैंने बताया, गोलोक धाम में खेल कूद ही है, कोई काम धंधा नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक अपने लेक्चर में बताते हैं, हमारे पिताजी ने कभी काम नहीं किया तो हम क्यों करें। इसलिए आप देखेंगे इस संसार में किसी भी व्यक्ति की काम करने में रुचि नहीं है। जैसे संडे आता है सब ब्रेक ढूंढते हैं, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि काम करना अच्छा नहीं लगता, सेवा करना अच्छा लगता है, प्रेम करना अच्छा लगता है। लेकिन संसार में दुनिया में आए तो काम कर प्यारे, काम कर सबको सलाम कर प्यारे, बाद में दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। यहाँ करना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। बच्चे का बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने को, उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है, जबरदस्ती जॉब में अप्लाई करना पड़ता है, जबरदस्ती नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन गोलोक धाम में फ्रीडम है। गाय चराने का तो बहाना होता है, बस भगवान को खेलना कूदना है, खूब खेलते कूदते हैं। और कैसे कैसे खेल कूदते हैं, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में। कृष्ण और बलराम जाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे बेल का पेड़ है, तो एक ग्वाला क्या करेगा, बेल को फल को लेके हवा में फेंकेगा, दूसरे बेल के फल से उस पर हिट करेगा। अगर वो हिट कर गया तो सब बोलेंगे साधु साधु, क्या बात है, क्या बात है। वो हिट नहीं किया, मिस किया तो सब उसका मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। अगर मोर आगे सामने नाचता है तो कृष्ण बोलते हैं उसको नाचने नहीं आता, मैं नाच के दिखाता हूँ। तो मोर के सामने कृष्ण नाचेंगे, सब क्या बात है, क्या बात है। और मोर भी इतना इंप्रेस हो जाता है कृष्ण की डांसिंग से, मोर बोलता है क्या हूँ, मेरे पास है क्या देने के लिए। मोर अपना पंख देता है और भगवान बोलते हैं ठीक है, आपने मुझे पंख दिया, भगवान पंख उठाने अपने सर पे लगा देते हैं, जो आपने दे उसको स्वीकार करता हूँ। तो साथ साथ में कृष्ण बलराम क्या करेंगे, जब छोटे बच्चे ही थे तो दोनों ने इकट्ठे रेंगना शुरू किया। भगवान की घुटनों लेना बहुत सुंदर है, भगवान घुटनों के बल जब रेंगते हैं, चलना शुरू करते हैं। एक्चुअली भगवान कुछ नहीं करते हैं, हाथ में हिलाते हैं, लीला। भगवान ने घुटनों पर चलना शुरू किया, लीला। सबको बड़ा आनंद आता था। तो यशोदा और रोहिणी दोनों कृष्ण बलराम को सजाती थी और दोनों ऐसे रेंग रहे हैं ना, गौशाला में अंदर गोबर पड़ा हुआ है। देखिए ये भगवान है जो सारी सृष्टि के कर्ता है, गायों को गोबर में रेंग रहे हैं। कितनी विशेष बात है ना। तो जब वो चल रहे हैं तो रोहिणी और यशोदा क्या करते थे, ब्रज में बड़े सुंदर कपड़े डाले, अपना सर ढक के रखते हैं। अब कृष्ण बलराम अपनी माँ को ढूंढ रहे, कहाँ गए। ब्रज की सारी स्त्रियां सी लगी हैं, सब मुगट किया हुआ है, तो ढूंढ रहे। दोनों रहते रहते स्त्री के पास जाते, नहीं नहीं ये कोई यशोदा और रोहिणी नहीं गई। फिर दूसरी स्त्री के पास जाते हैं, वो भी दूर से ऐसी लग रही थी, पास में जाते तो कोई और है। फिर तीसरी के पास जाते हैं, माँ दोनों की माँ ही नहीं मिल रही। तो जैसे बच्चा खून के बिना में खो जाता है, रोना शुरू कर देता है, तो कृष्ण बलराम फिर उनसे रोना शुरू कर देते हैं। और फिर यशोदा उनकी भागते हुए आती है, उनको उठाती है, फिर वो चुप हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण बलराम हमेशा इकट्ठे साथ में रहे। तो साख्य भाव में भी बलराम जी ने कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर क्या है, वात्सल्य भाव। क्योंकि दाऊ जी बड़े भाई हैं तो बड़े प्रोटेक्टिव रहते हैं कृष्ण के लिए। तुमने नहीं चढ़ना, फल चाहिए तो वो चढ़ जाएगा पेड़ पर, तुम नहीं जाओगे गिर जाओगे, चलो पीछे आओ, तुम बहुत कमजोर हो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो कृष्ण की हमेशा रक्षा करते हैं। कृष्ण को भी डर रहता है मैं कुछ करूंगा, यशोदा को जाके शिकायत लगा देंगे। तो ये वात्सल्य भाव में दाऊ जी कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर है माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करने के लिए क्या बन जाते हैं, अनंत मंजरी बन जाते हैं। ये अनंत मंजरी कौन है, श्रीमती राधा की छोटी बहन है, उनकी छोटी बहन की। तो मंजरियां क्या होती हैं, मंजरियां कम उम्र की गोपियां होती हैं। जब राधा कृष्ण की कुंज में लीलाएं होती हैं, वहां गोपियां प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन मंजरियां प्रवेश करती हैं। इनकी आयु 11 से 12 साल की होती है और ये राधा रानी के लिए पूरा श्रृंगार कर प्रबंध करती हैं, पूरे निकुंज को सजाती हैं। केवल यही वो काम कर सकती है। तो अनंत मंजरी के रूप में वो कृष्ण की सेवा करती हैं। तो बलराम जी में सेवा करने की भावना इतनी तेज है
कि वो अब पांचों भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। और यही बलराम जी आदि गुरु हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम सबको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के हमारे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी गुरु हैं वो बलराम जी के ही विस्तार हैं, बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं। गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है? तो आदि गुरु बलराम जी, इनका नाम क्या है? बलराम। बल का मतलब क्या होता है? शक्ति, पावर। कौन सी शक्ति? कौन सी पावर? आजकल लोगों की रुचि है मनी पावर में, मैन पावर, हॉर्स पावर। लेकिन असली पावर है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। तो बलराम जी हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। कैसे आध्यात्मिक शक्ति देते हैं? कृष्ण तो आए, उन्होंने गीता का संदेश दिया। अब इस गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारना है, इतना आसान नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते वो हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? मालूम है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। मालूम है ये करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते हैं। हमें मालूम है सुबह जल्दी उठ के जब करना चाहिए, बहुत जल्दी उठना चाहिए, कई बार नहीं उठ पाते। मालूम है ये भक्ति के लिए हानिकारक है, फिर इसको करते हैं हम अपनी पुरानी आदत के कारण। कितने लोग ऐसा अनुभव होता है बार बार? किस्मत में क्या है, सबके साथ हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं अपने मन के आगे। उसके लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। वो बल हमें मिलता है बलराम जी से। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। आध्यात्मिक बल होगा तो इस संसार के प्रलोभन को हम सहन कर पाएंगे। आध्यात्मिक बल नहीं है तो हम संसार के प्रलोभन में फंस जाते हैं। और आजकल तो स्मार्टफोन हमारे हाथ में रहता है, हर सेकंड प्रलोभन है ना? ढूंढने के आ जाते हैं, पहुंच कहाँ जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये किसको, ये क्या दिखाता है? आध्यात्मिक बल की कमी। तो बलराम जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो। जब भारत में श्री प्रभुपाद जी मुंबई में मंदिर बना रहे थे, जुहू में, तो आप संदेह लीला में पढ़ी होगी, प्रभुपाद लीला में पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत प्रभुपाद जी को संघर्ष करना पड़ा। जो प्रभुपाद ने जमीन खरीदी थी, उसके मालिक थे मिस्टर एन। मिस्टर एन जो थे वो मुंबई के शेरिफ रह चुके थे। शेरिफ बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका अपना न्यूज़पेपर था, लेकिन उनकी नीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सोचा था ये साधु लोग हैं तो मैं ठग लूंगा, इनसे भी पैसा ले लूंगा और ये जमीन किसी होटल वाले को बेच दूंगा। ये साधु मुझसे क्या जीत पाएंगे, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरी राजनेताओं से कोई जान पहचान है, इनको मैं दबा दूंगा ऐसे। तो उसने प्रभुपाद जी के साथ मिलकर डील भी कर लिया, बाद में धन करना शुरू कर दिया। जमीन के कागज नहीं दे रहा था, बहुत समस्या थी। तो उस समय प्रभुपाद जी विदेश में थे। प्रभुपाद जी ने गिरिराज स्वामी महाराज जो कि सन्यासी बने बाद में, उसमें ब्रह्मचारी थे, उनको बोला कि आप जो होंगे प्रेसिडेंट बनो। तो गिरिराज ब्रह्मचारी ने बोला मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहूँगा। नहीं, मुझे आपका विश्वास है, आप भी बने। तो बन गए। तो मिस्टर एन बड़े ही तिकड़मबाज व्यक्ति थे, षड्यंत्र रचते थे। उन्होंने सोचा मैं इस कॉल की रेपुटेशन खराब कर दूंगा, ये जो गिरिराज ब्रह्मचारी है इसको बदनाम कर दूंगा तो पूरे प्रेस में ऐसा आ जाएगा और मैं केस जीत जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि गिरिराज ब्रह्मचारी को फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ के मिलिए समय पे। गिरिराज ब्रह्मचारी बहुत सरल थे, मिलने चले गए। तो एक वैन आई, वैन में मिस्टर एन पीछे बैठे हैं, वैन का ड्राइवर आगे है, आगे की सीट खाली है। जैसे गिरिराज ब्रह्मचारी आए, पिछले की सीट में मिस्टर एन के साथ बैठे, वैन आगे चल पड़ी। आगे जाके फिर वैन रुक गई। अब क्या हुआ, पीछे का दरवाजा खुला और एक वैश्या थी वह के पीछे साथ में आके बैठ गई। आगे ड्राइवर है, ये सीट खाली है, यहाँ मिस्टर एन है, बीच में गिरिराज ब्रह्मचारी जी हैं और ये एक वैश्या है। और इस वैश्या को मिस्टर एन ने सेट किया हुआ था कि तुम क्या करना, ये ब्रह्मचारी के साथ उल्टी सीधी हरकत करना, और जो ड्राइवर के साथ वाली सीट में वहां फोटोग्राफर आ गए होंगे,
न्यूज़पेपर का कि मैं फोटो खींच लूँगा, पेपर में छप जाएगा और मेरा ब्रह्मचारी की बदनामी हो जाएगी, इस्कॉन की बदनामी हो जाएगी, हम कोर्ट में दिखाएंगे, केस जीत जाएंगे। तो वैश्य एकदम साथ में बैठ के चिपक के और गिरा ब्रह्मचारी से उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दी और वो फोटोग्राफर लेके तैयार है और सब कुछ सेट है। आप सोचिए आप गिरिराज जी क्या करते, यहाँ मिस्टर एन है, ये वैश्य है, फंस गए। और मैं सोचा इस समय मेरे से एक छोटी सी भी गलती हो गई, इस कौम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान था फिसलना उनका। उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ दिए और अपने गुरु श्री प्रभुपाद को याद किया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ऐसा हृदय से प्रभुपाद को स्मरण किया। प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु हैं, बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, उनको बल आया। उनकी महर्षि बिल्कुल विचलित नहीं हुए और जो वैश्य पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो फोटोग्राफर बोला ये तो फोटोग्राफ मैं खींचता हूँ तो इस कॉन्ट्री फेवरेबल हो जाएगी। एक वैश्य और किसी ने हरकत करके ब्रह्मचारी में बैठा आराम से, क्या पोज है ये तो मतलब कि मेनका ने जो विश्वामित्र को लगा कि ऐसा नहीं लगेगा, फर्स्ट क्लास में बैठे सारा विषय की योजना फेल हो रही है, नारायण बैठे रहे, प्रभु को याद करते रहे, थोड़ी शक्तियों को प्राप्त हो रही है। और वही भगवान जो हैं वैश्या के हृदय में भी है। उसने थोड़े के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गई, दरवाजा खोल के भाग गई वहां से, राज्य भी वहां से फिर चले गए। प्रभुपाद की राम जी की। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। वही बलराम जी हमारे सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम सबको बल चाहिए और वो बल है स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो हम इस कौन संस्था में आए हैं ये बल प्राप्त करने के लिए। आजकल लोग जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड, ठीक है, शरीर का बल भी होना चाहिए, पैसे का बल भी होना चाहिए, पावर का बल भी होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो। लेकिन असली बल जो हमें ढूंढना है वो आध्यात्मिक बल है। अगर आध्यात्मिक बल है हमारे पास और बाकी संसार की कोई शक्ति नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसार की बाकी सब हमारे पास ऐश्वर्य है, लेकिन आध्यात्मिक बल नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो बलराम जी का बल का मतलब है आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पावर। और राम का मतलब है आनंद। अगर आध्यात्मिक बल होगा तो आनंद प्राप्त होगा। इस संसार का कोई बल होगा वो आनंद नहीं देगा, आध्यात्मिक बल हमें आनंद देगा। इसलिए बलराम यानी कि हमें आध्यात्मिक बल देते हैं और फिर आनंद देते हैं। बलराम जी का दूसरा नाम है बलभद्र। बल मतलब ऑस्पिशियस, शुभ। अगर हमारे पास आध्यात्मिक बल है सब कुछ शुभ। बलराम जी का एक और नाम है संकर्षण। क्यों नाम पड़ा संकर्षण? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चले दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नेति मामेति सर्वजुना। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बड़े ध्यानपूर्वक भागवत सुन रहे थे। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हैं और सुखदेव गोस्वामी जी ने 9वें स्कंद में आते आते यदुवंशों का वर्णन किया। उसने बताया बलराम जी भी देवी घर में प्रकट हुए थे और फिर ऐसे करके छोड़ दिया। वह आगे बढ़ रहे थे, परीक्षित महाराज ने हाथ खड़ा किया। एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बलराम जी तो रोहिणी नंदन कहलाते हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, आप में बड़ो देवकी के गर्भ में आए, ऐसा कैसे? एक ही शिशु की एक ही जन्म में 2 माताएं कैसे हो सकती हैं? एक ही जन्म में किसी की 2 मां हो सकती हैं? एक मां के 2 पुत्र हो सकते हैं, एक पुत्र की 2 मां कैसे हो सकती हैं? बड़ा विचित्र बात है। आपने बड़ा देवकी के गर्भ में भी आए और हम जानते हैं, सब जानते, पूरा संसार जानते हैं कि वो रोहिणी के पुत्र हैं, तो कैसे समझे इस बात को? देखिए फिर मां से शुरू होती कथा। ये कैसे हुआ? हम सब जानते हैं, देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो रहा था
भविष्यवाणी हुई, कंस को सुनाया गया कि देवकी की आखिरी संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर एक एक करके वसुदेव ने जो भी संतान होती थी कंस को देता था, और कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन जो 7वां गर्भ था देवकी का, वो स्वयं अनंत शेष थे, स्वयं बलराम जी थे। क्यों ऐसे आए थे? और फिर भगवान ने योग माया से क्या किया? देवकी के गर्भ से बलराम जी को योग माया ने स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। आज की मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। आजकल IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी सब कर रहे हैं, लेकिन एक स्त्री के गर्भ से दूसरी स्त्री के गर्भ में अंतर स्थानांतरण नहीं कर पाए। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति है, उसने ऐसा किया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों बलराम जी को देवकी के गर्भ में प्रकट होना पड़ा? क्योंकि 8वें गर्भ के रूप में कृष्ण को प्रकट होना है। और जब पहले 6 गर्भ थे देवकी के गर्भ में, इनको बोलते हैं षट गर्भ असुर। तो 6 असुर हैं। कौन थे ये असुर? इसकी भी कथा बताई गई है कि ये सबके सब काल नेमि के पुत्र थे। काल नेमि पिछले जन्म में जो कंस है वो पिछले जन्म में काल नेमि था, और उसकी 6 संतानें थी। तो ये 6 संतानें देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, और 6 का वध कंस ने किया। क्यों? क्योंकि इन 6 असुरों को ये श्राप मिला था हिरण्यकशिपु से कि तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। क्यों पिता के द्वारा मारे जाओगे? ये हिरण्यकशिपु के परिवार में आए थे और इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या कर ली थी कि हम अमर हो जाए। जैसे हिरण्यकशिपु को ये मालूम चला कि मेरे पोते होते हुए इन्होंने ये तपस्या की है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, मुझसे वरदान नहीं मांगा तो श्राप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ में होगी। और फिर इससे पीछे और कथा है कि ये जो 6 बच्चे थे, कौन थे जो हिरण्यकशिपु के पोते बने? मालूम चला ये मरीचि के पुत्र थे। समझ आ रही कथा? एक के अंदर एक फ्लैशबैक चल रहा है। तो मरीचि के पुत्र थे, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो क्या हुआ था? एक बार ब्रह्मा जी जब अपने सुबह सुबह सृष्टि की रचना शुरू की, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 30वें स्कंद में, जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो ब्रह्म लोक से लेकर नीचे जितने भी लोक हैं उनमें प्रलय हो जाती है। और ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब सुबह उठते हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं, आज क्या है, मंडे है, संडे, पता नहीं। तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज होते हैं। तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी रोज भागवत क्लास अटेंड करते हैं, आप सोचिए। और उसके बाद वो सृष्टि शुरू करती है। ब्रह्मा जी का मॉर्निंग प्रोग्राम भागवत क्लास अटेंड करना। तो एक बार क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो वाक मनुष्य अपनी पुत्री को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या हो गया, पुत्री को जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही आकर्षित हो गए और पुत्री के पीछे भागने लगे। सब ऋषि मुनि ने बोला ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं आप? उनके लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी में बड़ी कामवासना जागृत थी। तो उस समय जो मरीचि के पुत्र थे, 6 पुत्र थे, उन्होंने अपने दादाजी का मजाक उड़ाया। छी छी छी, देखो बड़े होते थे, अपने आप को इनकी हालत है, उनका मजाक उड़ाया। उनका जब मजाक उड़ाया, ब्रह्मा जी को साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो बाद में ब्रह्मा जी को बुद्धि आ गई, उन्होंने अपनी गलत मानसिकता त्याग दी। लेकिन इन लोगों ने जो मजाक उड़ाया, इन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया। तो फिर ये असुर कुल में पैदा हुए, हिरण्यकशिपु के पोते के रूप में पैदा हुए, ठीक है ना। और फिर बाद में कालनेमि के पुत्र जो थे, और फिर कालनेमि कंस के रूप में आया, और फिर कंस ने इनका वध किया। तो कोई पूछेगा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया, कि इतने बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी और ऐसा गलत काम क्यों किया? हमारे आचार्य समझाते हैं, ध्यान से सुनिए कि उस दिन सुबह ब्रह्मा जी ने भागवत क्लास अटेंड नहीं की थी। ब्रह्मा जी जल्दबाजी में थे, सृष्टि की रचना शुरू करनी है, रोज भागवत अटेंड करना, मालूम कोई 4 शब्दों में, चलो वही फिलॉसफी है।
तो ब्रह्मा जी ने जलपाई में सृष्टि रचना शुरू कर दी बिना मौनी को काम करने के। दिमाग खराब हो गया उनका। जब ब्रह्मा जी की ये हालत हो सकती है तो हम सोचे अगर हम भागवत नहीं पढ़ें तो हमारी क्या हालत होगी। ये सच्चाई की बात है। प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन भागवत कक्षा में आए, सुने, पढ़े, इससे हमारी बुद्धि ठीक रहती है। तो हम भी भटक जाते हैं और कई बार इतने भटक जाते हैं हम गलत को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 6 असुर थे, क्योंकि उन्हें देवी के घर में जन्म दिया, अब उसी घर में कृष्ण आने वाले हैं, घर तो दूषित हो गया। तो उस घर को शुद्ध करने के लिए पहले बलराम जी प्रकट, ये बलराम जी की सेवा है, समझा। बलराम जी वहां प्रकट हुए, जब देवी के घर को शुद्ध कर दिया, फिर योग माया ने बलराम जी को देवी के घर से रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिया और फिर वो रोहिणी नंदन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी का नाम संकर्षण है। कैसे संकर्षण है कि रोहिणी के गर्भ से इनको आकर्षित किया गया, देवी के गर्भ से आकर्षित हुए रोहिणी के गर्भ में, तो इसको संकर्षण बोला गया। बलराम जी के हाथ में क्या रहता है? हल रहता है, यानी कि हर समस्या का हल है इनके पास। जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण बलराम की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने बोला आप कोई चिंता नहीं है, जीवन में कोई समस्या आए कृष्ण बलराम के सामने हम चले जाइए, उसका वर्णन कीजिए, बलराम से प्रार्थना कीजिए, आप देखिए आपको समाधान मिल जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, आप भी कर सकते हैं। आपने कृष्ण बलराम मंदिर है, चाहिए और प्रार्थना कीजिए। तो बलराम जी के हाथ में हल इसलिए भी होता है कि बलराम जी खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? हमारे हृदय की खेती करते हैं। बलराम जी के प्रतिनिधि है गुरु, वो हमारा हृदय जो है बंजर है, उपजाऊ नहीं है, इसमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हम सबने बोला हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उसमें बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने के लिए हृदय को उपजाऊ भूमि बनाना पड़ेगा, इसमें हल जोड़ना पड़ेगा। तो जो हल है वो है गुरु के आदेश। जब गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो हमारा हृदय जो बंजर से उपजाऊ भूमि बनता है, तब उसमें भक्ति का बीज बनाता है और प्रेम प्रकट होता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए बलराम प्रेमा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और हमें भगवान से खूब प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक बल मिले ताकि हम गुरु के आज्ञाओं का पालन कर सकें और हमारे हृदय में भी कर्षण हो। हमारा हृदय जो बंजर भूमि बना पड़ा है वो उपजाऊ भूमि बन जाए, उसमें प्रेम प्रकट हो। बलराम जी ने कृष्ण के साथ हमेशा वो विहार करने जाते थे और वृंदावन में कृष्ण ने बहुत से असुरों का वध किया, लेकिन 2 असुरों का वध बलराम जी ने किया। कौन कौन से असुर थे? किसी को याद है? बताइए। तो क्या हुआ? कृष्ण बलराम थे, आश्रम में कथा सुनी होगी, लेकिन बार बार सुनने में आनंद आता है। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं और साथ ही में तालवन। वृंदावन में मुख्य 12 वन है, उसमें कुछ जमुना जी के पश्चिमी तट में है, कुछ यमुना जी के पूर्वी तट में है। तो तालवन वृंदावन के यमुना के पश्चिमी तट पे है। तो कृष्ण बलराम खेल रहे ग्वाल वालों के साथ, तो ग्वालों ने बोला बहुत भूख लगी है, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहें तो सामने देखिए कितनी सुगंध आ रही है ताल के पेड़ के फल की, हमारी इच्छा है हम उस फल को खाएंगे, ओके, अगर आप चाहें तो। ऐसे तो जो वृंदावन के तट के ग्वालवाल हैं वो हमारे वृंदावन के जो वाले हैं वो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से सेवा लेते नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम की भी इच्छा हो जाए कुछ खाने की, थोड़ा आनंद आएगा। बोले कृष्ण बलराम ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन बड़ा एक समस्या है, इस तालवन में एक असुर आता है गधे के रूप में, गधे के रूप में असुर आता है और वो किसी को इस वन में प्रवेश नहीं करने देता। और यहाँ तक कि
कोई पक्षी के ऊपर से वहां से उड़ के नहीं आता, मेरा एरिया है, कोई इस एरिया में प्रवेश नहीं करेगा ना, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, मेरा क्षेत्र है। और बड़ा खूंखार असुर है, और उसके साथ उसके बहुत से पूरे गधों की आर्मी, वो भी सब असुर है। तो ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है, ये असुर की मानसिकता है। यदि गधा तो घास ही खाता है, वो ताल के वृक्ष वो ताल को खाता भी नहीं है, ना खाने को मैं ना खुद खाऊंगा और किसी को घुसने भी नहीं दूंगा, ये मेरा एरिया है। गधा, यही उसकी मानसिकता थी। हमारे कोई बात चलते हैं तो कृष्ण ने बलराम जी को इशारा किया, चलो आप खेलो यहाँ। तो बलराम जी ने क्या किया, के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, बहुत सुंदर नारी थी। तो बलराम जी ने इतना, हालांकि छोटे बालक हैं, इतना बल था, उन्होंने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। कोई पेड़ को हिला सकता है? नहीं, पेड़ को हिला दिया, पेड़ हिल पड़े, और ऊपर से बड़े बड़े ताल के फल नीचे गिर गए, बड़ी जोरों से आवाज आने लगी। तो जो धेनु का सपोर्ट चाहता, किसकी हिम्मत हुई मेरे मन में आने के लिए? इतना शोर शराबा क्यों मच रहा है, लगता कोई आया है, छोड़ूंगा नहीं उसको जिंदा। तो बड़ी तेजी से भागता हुआ उसने देखा इस सामने दो बड़े सुंदर से बालक हैं, कोमल से बालक हैं, और पूरे साथ में ग्वाल वाले हैं। गधा ने क्या किया, दौड़ता हुआ है, बराबर तेजी से दौड़ता हुआ आया। तो पहले कृष्ण बलराम को क्रॉस किया, फिर पीछे आया। कभी गधा क्या करता है, अटैक कैसे करता है, पीछे करता है। तो देख गधा सारा मोमेंटम लूज कर दे, बड़े तेजी से भाग के आया, रुकता है, फिर पीछे आके जोर से बलराम जी को आक्रमण करने का प्रयास। बलराम जी की छाती को उसने मारा, बलराम जी को छुपाई, फिर से बलराम जी पेड़ को हिलाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से पीछे गया, मोमेंटम गेन किया, तेजी से दौड़ते आया, आगे रुका, पीछे फिर से बलराम जी पे अटैक किया। बलराम जी ने क्या किया, अपने कोमल हाथों से उस गधे की टांग को पकड़ लिया, पकड़ के ऐसा घुमाया। आपने ओलंपिक से देखा होगा, जेवलिन थ्रो होता है ना, तो ऐसा घुमाया, कितना ह्यूज, कितना बड़ा गधा था वो। और बलराम जी छोटे से। ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ये कहानियां नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान की शक्ति है, ये अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से परे है। हम समझ नहीं पाएंगे ऐसा कैसे है, बस भगवान की लीला है। इसलिए भगवान गीता कहते हैं, जन्म कर्म चंदेक दिव्य, ये दिव्य है, हमारी बुद्धि के परे है। हम अपनी बुद्धि से ये तो समझ नहीं पाते कि हमारा खाना पचता कैसे है, तो ये कैसे समझ पाएंगे कि भगवान क्या लीला करते हैं। इस बुद्धि से तो कोरोना वायरस को तो समझ नहीं पाए, तो भगवान क्या समझेंगे। तो बलराम जी ने ऐसा घुमाया जोर से, इतना घुमाया कि उस गधे ने वही प्राण त्याग दिए, इतना जोर से उसने घुमाया। और केवल घुमाया नहीं, ऐसे घुमा के बलराम जी ने उसको जोर से ऊपर फेंका, और इतनी जोर से ऊपर फेंका, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर जाके गिर गया। और एक पेड़ के ऊपर गिरा, गधा इतना भारी था और पेड़ इतने मजबूत थे, गधे का इतना वेट था और धेनु का सुर का, कि पेड़ नीचे गिरना शुरू हो। और जब पेड़ नीचे गिर रहा है तो दूसरे पेड़ के ऊपर गिर रहा है, इतना वेट था, दूसरा पेड़ नीचे गिरना शुरू हो गया। जब बस सारे गधों की आर्मी थी, सारे असुर थे, बोले हमारे बॉस की ये हालत हो गई है। तो सब भागते हुए, अब तो कृष्ण बलराम हो गया, ठीक है, सब गधे आ रहे, कोई कृष्ण पकड़ रहे, कोई बलराम पकड़ रहे, उठा के फेंक रहे हैं, और सब ऊपर जाके गिर रहे हैं, सब नीचे के ऊपर। कृष्ण बलराम के लिए असुरों को मारना खेल था, उनको लगता है थर्मोकोल के गधे हैं, इतने भारी भरकम भी लगते थे, उठा के फेंकते थे। और कृष्ण बलराम के लिए असुरों को मारना एपेटाइजर का काम करता था, उनको भूख नहीं लगती। फिर जब असुर मार देते फिर थोड़ी भूख भी चलो जाती, कुछ खाते पीते हैं। कृष्ण बलराम बालवानों के साथ खेलते हुए इतने मस्त हो जाते थे कि खाना भूल जाते थे। तो योग माया क्या करती थी, तो भूखे रह जाएंगे तो कुछ असुरों को बेचती थी, तो असुरों को मारने का ब्रेकफास्ट करते हैं, ये उनका स्टाइल था। तो उठा के मार रहे हैं, सब गधे पेड़ के ऊपर लटके हुए हैं और पेड़ नीचे गिर रहे हैं। और हमारे आचार्य बताते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य था, खून निकल रहा है उनके मुख से, और कुछ ग्रे कलर के गधे हैं, ऊपर वो लटके हुए हैं, नीचे गिर रहे हैं, और सारे ताल के जो फल हैं वो भी नीचे गिर गए।
अब उसमें कुछ गधों का खून भी मिल गया, अब खाया तो है नहीं, खाने गए थे वो भी नहीं खा पाए, कृष्ण बलराम भी नहीं खा पाए, बाल भी नहीं खा पाए, लेकिन धेनुकासुर का वध कर दिया। उसके बाद फिर ब्रजवासियों ने दान बनाना शुरू किया। बलराम जी की तो हमारे आचार्य भक्ति ठाकुर जी बताते हैं कि कृष्ण के बलराम की लीला में ब्रज के जो भी असुरों का वध होता है, ये हमारे हृदय के कुछ अनर्थों को इंगित करता है। भक्ति ठाकुर जी चैतन्य शिक्षा में बताते हैं। तो जो धेनुकासुर है वो हमारे हृदय की अज्ञानता को इंगित करता है। गधा मतलब की अज्ञानता, इग्नोरेंस। क्या इग्नोरेंस है? वो गधा सोचता था मैं शरीर हूं, ये मेरा क्षेत्र है, मैं और मेरा की अज्ञानता। इस संसार में हम सब इसे फंसे हुए हैं, मैं और मेरा। मैं ये शरीर हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे लोग हैं, इनको कोई छुएगा नहीं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है मैं और मेरा। इसमें हम फंसे रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बलराम जी ने इसका वध किया। तो भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि इस अज्ञानता को पार करने के लिए एक साधक को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने आप दूर नहीं हो पाएगा। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? गुरु की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद ने कहा गुरु की सभी आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना। कम से कम प्रभुपाद ने बोला है कम से कम 16 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। हम लोग उसमें अंदर ज्यादा से ज्यादा 16 माला का जप, कम से कम हम लोग 16 माला के बहुत। प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे जो 64 माला प्रतिदिन जप नहीं करता वो पतित है। ये तो प्रभुपाद जी ने हम पे कृपा की, लेकिन हमने लाइफ का टारगेट रखते हैं 16 तक पहुंचना बस बहुत हो गया, प्रभु जी हो गया पहुंच गए। नहीं, वो कम से कम है और क्वांटिटी भी बढ़ानी है और क्वालिटी भी बढ़ानी है। उसको ध्यान पूर्वक करना है, तभी ये अज्ञानता खत्म होगी। नहीं तो मैं और मेरे का ये जो इल्यूजन है, मोह है, इतना गहरा है कि इससे हम ऊपर नहीं उठ पाते। और भक्तों के समाज में भी इसको लेकर बहुत से आपस में द्वंद चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो क्या कर रहे हैं? एक गधे की मानसिकता है, क्या मैं और क्या मेरा। सब कुछ भगवान की शक्ति। ईशावास्य हिदत सर्वम व्यक्तिंच्या जगतम जगत देव जगत मां के भगत से सिद्धनम। एक बार श्री प्रभुपाद से शिष्य गए, बोले प्रभुपाद आई वांट टू रिनाउंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोला तो बस है क्या जो त्याग बोलिए। ऐसे बोले, एक भिखारी बोल रहा था दान दे रहा है, तुम्हारा है क्या? सब कुछ भगवान का है, लेकिन सोचते हैं मेरा है। आई वांट टू रिनाउंस एवरीथिंग। अगर हमें रिनाउंस करना है तो अपने मिथ्या अहंकार को रिनाउंस करना है कि मैं स्वामी हूँ, मैं संसार का मालिक हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। आते हैं जो भी मेरे पास है इट इज अंडर माई केयर, मेरी केयर में है, लेकिन प्रोपराइटर कोई कृष्ण ही है, मुझे क्यों इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये धेनुकासुर का वध कृष्ण ने क्यों नहीं किया और ये पिछले जन्म में कौन था? तो हमारे पुराणों में से बहुत कथा सुंदर बताई गई है। तो बताते हैं कि धेनुकासुर पिछले जन्म में बलि महाराज का पुत्र था। इसका नाम था साहसिका। बहुत बड़ा असुर था, ये भयंकर असुर था। और एक वनमालन पर्वत पे जाके 10,000 स्त्रियों के साथ खेल कूद कर रहा था, रास रचा रहा था। और वहीं पे वनमालन पर्वत पे दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि तपस्या करके बहुत दुबले पतले हो गए थे, जटाएं बढ़ गई थी। और ये जो था साहसिका, उसको कि जब किसी के पास बहुत ऐश्वर्य होता है तो वो नशे में मद का अंत होता है, अंधा हो गया। उसने परवाह नहीं की कि दुर्वासा मुनि की तपस्या भंग करेंगे। तो दुर्वासा मुनि ने उसको श्राप दिया कि तुम्हारी जो मानसिकता है गधे वाली मानसिकता है,
तुम ग्रह बनोगे। तुम्हें जरा भी परेशान हो गया, क्षमा कर दीजिए मुझे। बोले ठीक है। द्वापर युग में कृष्ण के साथ बलराम जी आएंगे, यमुना के तट पे ताल में वो तुम्हारा वध करके तुम्हें मुक्त करेंगे। तो बलराम जी के द्वारा कौशल का वध हुआ, क्योंकि कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि मैंने इन्होंने कृष्ण का वध किया नरसिंह भगवान के रूप में, अब आगे आपके वंश में किसी का वध नहीं होगा। तो इस साहसी का प्रहलाद के पोते बलि महाराज के पुत्र थे, इसलिए कृष्ण ने बोला बलराम जी को आप इसका वध कीजिए और इसका उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से बलराम जी ने ब्रज में एक असुर का वध किया। दूसरे जो असुर थे ब्रज में वो थे प्रलंबासुर, उनका वध भी बलराम जी ने किया। तो क्या हुआ कि प्रलंबासुर को कंस ने देखा था कि जाओ कृष्ण बलराम को मार दिया। और ये जो असुर थे इनके पास बहुत मायिक शक्तियां होती थी, ये कोई भी रूप बदल सकते थे। हम देखते हैं पूतना जब कृष्ण को मारने आए थे बहुत सुंदर लक्ष्मी का रूप धारण करके आए थे। इसी ढंग से ये प्रलंबासुर पूरा वॉच कर रहा था कि कृष्ण बलराम कब खेलने जाते हैं, कहाँ खेलने जाते हैं, कौन कौन उनके मित्र हैं, पूरा ट्रैक रखा हुआ था। तो एक दिन उसने देखा कि एक जो वाला है वो खेलने नहीं आया, तो बोला ठीक है, इस प्रलंबासुर ने वही रूप धारण कर लिया, बिल्कुल हूबहू वैसा ही, और कृष्ण बलराम के साथ खेलने आ गए। कृष्ण बलराम को खेलते थे तो दो पार्टीज बना लेते थे, एक कृष्ण की पार्टी होती थी, एक बलराम की पार्टी होती थी, और खेलते थे। बोले जो हार जाएगा वो क्या करेगा, जीतने वाली पार्टी को अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण बलराम की पार्टी थी। तो प्रलंबासुर ने सोचा किसकी पार्टी में जाऊं। उसने सोचा कृष्ण की पार्टी में आता हूँ, मैं अभी कृष्ण को नहीं मारूंगा, कृष्ण थोड़ा मारना थोड़ा रिस्की है, बलराम जी पे अटैक करता हूँ। तो कृष्ण की पार्टी में आ गया, और कृष्ण ने जैसे प्रलंबासुर को देखा वो समझ गए ये है असुर, गोला बन के आया है। कृष्ण समझ गए थे, लेकिन कृष्ण को उसको खेलने देते हैं। देखिए हम संसार में सबको धोखा दे सकते हैं, कृष्ण को नहीं दे सकते। ये भौतिक जगत में हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। प्रभुपाद श्री गुरु महाराज कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। कोई चीट कर रहा है, कोई चीट हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ से संबंध है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चीटिंग नहीं चलती है। भौतिक जीवन में चीटिंग ही चीटिंग है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में भक्ति में चीटिंग नहीं चलेगी। लगेगा कुछ समय तक हमने उसको मूर्ख बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली भगवान कहते हैं धोखा देने वाले में सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूं, मुझको धोखा नहीं दे सकता कोई। तो भगवान के सामने रूप बदल के आ गया, भगवान पहचान गए, ठीक है इसको भी सेट कर देंगे। तो ये कृष्ण बलराम खेल रहे थे। आप देखिए कृष्ण की पार्टी हार गई, ये ब्रज की खूबी है। कृष्ण असम उर्दू में है, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन खेल खेल में कृष्ण कौनों से हार जाता है। कृष्ण की पार्टी हार गई, कृष्ण की पार्टी हार गई तो कृष्ण के साथ कृष्ण की टीम में जितने भी लोग थे उन्हें बलराम की टीम को पीठ पे बिठाना था। तो प्रलंबासुर ने कहा बलराम जी को मैं बैठाऊंगा, तो बलराम जी को बैठा दिया और चलना शुरू हुआ। और प्रलंबासुर ने बोला कहीं दूर ले जाऊंगा, फिर इसका वध करूंगा, बहुत तीव्र गति से। और फिर धीरे धीरे प्रलंबासुर ने क्या किया, अपना आकार बना लिया, बहुत ह्यूज, बहुत बड़े आकार का हो गया, और अपने असली रूप में आ गया, बड़े खूंखार रूप में आ गया, एकदम काला, और उसके तांबे की तरह के बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दांत बाहर निकल रहे हैं, और बलराम जी छोटे से उसके कंधे पे ऐसे बैठे हैं, चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। और प्रलंबासुर ने पूरी हाइट लेकर हवा में उड़ना शुरू कर दिया। बलराम जी शुरू घबरा गया, ये क्या है, ऐसे कैसे हो गया। बलराम जी भी हिला नहीं, तो भी भगवान जी को चिंता हुई, अगर ये असुर यहाँ पर है तो कृष्ण क्या हो रहा होगा, कृष्ण सुरक्षित नहीं है, एक असुर मुझे यहाँ ले गया, हो सकता है कृष्ण के ऊपर असुर आक्रमण कर रहा हो। तो दाऊद जी को कृष्ण की चिंता हो गई, और जब प्रलंबासुर ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, बलराम जी को क्या था, बलराम ने एक चौक मारा, सीधा, और कुछ नहीं,
से ऐसा किया, पूरा ऊपर से नीचे गिरा, मुंह से खून निकलने शुरू हो गया, नाक से नीचे उसका वध हो गया। बोलो बलराम जी की। सब बालों इकट्ठे हो गए, बलराम जी उसने उठा लिया। तो ये जो प्रलंबासुर है, ये हमारे अंदर कौन से अनर्थ को दिखाता है? काम वासना है। इस संसार में हमारे अंदर जो सबसे बड़ा रोग है हृदय का, हम सब हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट में क्या है? प्रेम की जगह क्या है? काम है। हमारी आर्टरीज ब्लॉक है काम के कारण। तो ये जो काम वासना है, इसलिए हम पे अटैक हो रहा है और हम सब काम से वशीभूत हैं। तो बलराम जी ने काम का वध किया। और ये क्या दिखाता है? जब हमारे हृदय में काम वासना होती है तो कपट आ जाता है, डुप्लीसिटी आ जाती है। प्रलंबासुर था, असुर आया था भगवान को मारने, दिखा रहा था नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जब हृदय में काम होता है तो हम भक्ति भी कई बार करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी पूजा में प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। बहुत सटल है ये, हमारे अंदर कपट लेके आता है, डुप्लीसिटी लेकर आता है। लेकिन जब जैसे ही काम बड़ा होता है, आदि गुरु बलराम जी इसका वध करते हैं। गुरु की आज्ञा जब हावी हो जाती है तो फिर काम कमजोर पड़ जाता है। तो हमारे अंदर हमेशा हमारे को ऑप्शन रहेगा हमारे जीवन में, हमने अपनी मन की बात माननी है, काम के अनुसार चलना है कि गुरु के वचन के अनुसार चलना है। गुरु का मतलब होता है भारी, मतलब पूरे संसार का मत एक तरफ, गुरु की वचन एक तरफ, उनका ओपिनियन एक तरफ। तो जो मर्जी मन कहे हमने फॉलो करना है गुरु और साथियों को, तब हम काम को रोक सकते हैं, तब काम का वध किया जा सकता है। अन्यथा भगवान गीता में कहते हैं काम निशा क्रोधेशर रजोगुण महाशना महापाप, देखिए ये हमारा नित्य वैद्य है, काम हमारा नित्य शत्रु है। और ये ऐसा शत्रु है जिसको हम मित्र मानते हैं। हम सब काम मतलब क्या है? मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं। और हम सोचते हैं ये भौतिक इच्छाएं मेरे आनंद का कारण बनेंगे, लेकिन हमारे दुख का कारण बनती है। तो ये ऐसा शत्रु है दूर से भी मित्र होता है। आप किसी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आपका वकील अपोजिट पार्टी से मिल जाए तो कैसी हालत हो जाएगी? आप पुलिस को फीस भी दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हमारी तरफ से लड़ेगा, लेकिन दूसरे से मिल जाए। इसी वजह से काम दिखता हमारा मित्र है, लेकिन हमारा नित्य शत्रु है। इससे हम विजय पा सकते हैं आदि गुरु की प्रतिनिधि, गुरु की आज्ञाओं का पालन करके। तो ये अज्ञानता और काम ऐसे दो अनर्थ हैं जिसका निवारण एक साधक को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए ये अपने आप नहीं जाएंगे, इसके लिए बहुत उत्साह से हमें लगना पड़ेगा गुरु की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए। तब हम इनसे मुक्त होंगे और तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बलराम पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है हम सबके लिए, और हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से कि हमें बल प्राप्त हो ताकि संसार के क्रोधों से बचें और हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम अपने हृदय की अज्ञानता और काम को दूर कर सकें। कैसे? जो हमारे श्री प्रभुपाद जी के आदेश हैं उनका अच्छे ढंग से पालन करें, हमारे हृदय में भी वो हल चलाएं ताकि हमारा हृदय कोमल हो जाए, उपजाऊ हो जाए, और हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम हो, इस संसार के प्रत्येक जीव के लिए प्रेम हो। इस काम के कारण हमारे हृदय में कपट आता है और डुप्लीसिटी आती है, हिपोक्रेसी, द्वेष, सब इस काम से प्रकट होते हैं। तो ये खत्म हो जाएगा, हमारा हृदय कितना सुंदर हो जाएगा और फिर हम सब में प्रेम तो ये बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। हमारा जो असली रिलेशनशिप है इस संसार में, सबसे बड़ी समस्या आजकल रिलेशनशिप की है। कोई भी संबंध में संतुष्ट नहीं है क्योंकि वास्तविक प्रेम नहीं है। हर संबंध तभी मीठा होगा, मधुर होगा जब बीच में कृष्ण होंगे। चाहे पति पत्नी का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, दो मित्रों का संबंध है, बीच में कृष्ण होंगे तभी वो संबंध इस बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी उत्सव में हम अपने जीवन के मध्य में कृष्ण को लेकर आए और जितना हम कृष्ण के आज्ञा के अनुसार, गुरु के आज्ञा अनुसार जीवन जिएंगे उतने हम खुश रहेंगे।
संसार की गलतफहमी क्या है कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे, आध्यात्मिक जीवन में आएंगे, हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी, हम बंध जाएंगे जीवों में, हम आनंद हमारा कम हो जाएगा। ये उल्टी बात है। जितना हम भक्ति में आएंगे हमारा आनंद बढ़ेगा। आप इसे कितने लोग जो भक्ति में आ चुके हैं उनको लगता है कि भक्ति में आने के बाद उनका आनंद बढ़ा है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? कितने लोगों को लगता है कि भक्ति आने के बाद आनंद कम हुआ है कोई ऐसा जी? लगता है कि भक्ति आने के बाद आनंद बढ़ा तो बड़ी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी को बलरामपुर में बोल रहे हैं कि अब और तीव्रता से भक्ति करनी है और अच्छे से भक्ति करनी है, इसको हम टालें नहीं, इमीडिएटली अच्छी से अच्छी भक्ति करें ताकि हम कृष्ण भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री गोपाल की, कृष्ण भगवान की, भगवान पूर्णिमा महोत्सव की, गौर देवानंदे। प्रश्न कमेंट? कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नहीं है मतलब कुछ समझ नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया? कौन सा केस है? कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू हो जाते हैं। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम प्रश्न, हम प्रश्न पूछना कर देंगे। यस, बचा लिया जब जापा करते हैं तो उसमें रुचि नहीं है, तो क्या करें? कृपा से किसी ने प्रश्न पूछा तो कृपा ने उत्तर दिया, एक ही दिन में कोई शराबी नहीं बनता था। पहले बार किसी व्यक्ति को नई व्यक्ति को शराब पिलाई जाती है, उसको कड़वी लगती है, लेकिन वो शराबियों के संग में रहता है, बड़े महान शराबियों के संग में रहता है, उसका उत्साह आते बेटा लेकिन बहुत बड़ा हिमालय बन जाता है। इसी वजह से ये जो हरिनाम है ये भी डिवाइन माइंड है, ये दिव्य नशा है। तो शुरू से हमें नहीं लगता क्योंकि हमारे अंदर पीलिया का रोग है ना, हमें ये मीठा है लेकिन मीठा लगने का कड़वा लगता है, लेकिन इसकी दवाई यही है बीमारी की। तो गुरु गोस्वामी जी बताते हैं किंतु आदरा अनुदीनम खंसा एव जुष्टा स्वावा क्रमाद भवति तदगत मूलहंसी। प्रतिदिन आदर पूर्वक इसका जप कीजिए, स्वादा क्रमाद भवति, धीरे धीरे स्वाद आना शुरू हो जाएगा, तदगत मूलहंत्री, और जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। हिम्मत नहीं आती भक्तों के संग में रोज ध्यान पूर्वक जप करने का, आदर पूर्वक जप करने का प्रयास करते रहे, लगे रहें एवरीडे कंटिन्यूअस, तो क्या होगा धीरे 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 स्वाद आना शुरू हो जाएगा। राइट, उसके लिए प्रयास करना और कहीं ओके, ठीक है। तो प्रश्न पूछते हैं आपसे हम, जो देवकी के 6 पहले संतान थे उनका क्या इतिहास था? सिक्स सन्स ऑफ मार्च, उसके बाद क्या बने? Karmali's sons. And why they were cursed? Because they loved that Brahmaji's action. Huh? They loved that Brahmaji's action. Brahmaji. ब्रह्माजी का अपराध था। Yes, very good. तो फिर बलराम जी को क्यों आना पड़ा सातवें दल के रूप में? सफाई। Yes.
6 असुर हैं, हमारे हृदय के 6 अनर्थ निकाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब तक इनका वध नहीं होगा, कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। तो ये मत करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो आप सबको वंदना देने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। और आप सबके लिए हम वृंदावन से प्रसाद लेकर भी गए हैं।
जय विष्णुपाद परमहंस स्वामी Krishna Prabhupada ki ISKCON Paundracharya Jagat Guru Seva, the whole world is Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Vishnupada Paramahansa Acharya Shri His Divine Krishna Bhakti Siddhanta Sasitari Mala Prabhupada ki Anand Koti Vaishnavi ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Praise Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda ki Shri Radha Gurukhanand Ji ki Shri Bhavnidai ki Vrindadev Tulsi Maharani ki Gaurashman Bhagavatam ki Adhan Purnima Mahamahotsav ki Krishna Vadaram ki Jai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru Gauranga, glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki Jai. लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की नाम